Listening is the easiest module to score a band 9. But have you ever wondered, why don't you? The reason? Because you don't know the steps which are going to help you to score a band 9. Hi friends, I am Vikram Singh Teja, and in this video I'm gonna tell you all the steps that you need to score a band 9 in the listening module. This is not the last video that I'm shooting on the listening module. I'm going to shoot a lot of videos with tips. So what do you need to do? First of all, subscribe the channel, hit the bell icon so that you receive all the notifications, and let's start. The first thing towards the listening module is having the right attitude. The positive attitude, believing that yes, you can score a band 9. If you believe that you cannot, then nobody can help you to do so. First of all, start believing yourself. Believe that yes, you can score a band 9. So the first one is develop a positive attitude. Second, of course, please listen to the instructions very carefully. Read the instructions very carefully. Circle the keywords and make sure that you follow all the instructions very, very carefully. Moving on to the next one. It is the most important thing. Please read the questions very carefully. Circle the keywords, and now I'm going to tell you the most important thing. Anticipate the correct answer. इससे पहले कि आप टेप सुन के करेक्ट आंसर ढूंढो, ढूंढने से पहले ढूंढो कि ढूंढना क्या है, और फिर वो आपको मिल जाएगा. I gave you this tip in my reading module also. आप में से जिन स्टूडेंट्स ने मेरे रीडिंग मॉड्यूल वाले टिप्स नहीं देखेंगे, प्लीज गो एंड चेक दैट वीडियो एज वेल. नाउ हियर आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल, द पावर ऑफ एंटिसिपेटिंग द करेक्ट आंसर. अपनी पेंसिल उठा लीजिए, टेक योर नोटबुक एंड note this down. The office opens at. यहां ज्यादातर लोग क्या करेंगे कि ओपन वर्ड को सर्कल कर लेंगे, एट को नहीं करेंगे. सेकेंड एग्जाम्पल, द ऑफिस ओपन्स टिल. अब जिन स्टूडेंट्स ने ओपन्स के साथ एट या ओपन्स के साथ टिल को सर्कल नहीं किया है, दे विल गेट द रॉन्ग आंसर. लेट मी एक्सप्लेन हाउ, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा कि मैं क्या समझाना चाहता हूं यहां पे. The office opens at. It will be the opening time of the office. But when it is the office opens till, then it will be the closing time of the office. अगर मैं इसको ट्रांसलेट करके दूं आपको, the office opens at, ऑफिस इतने बजे खुलता है, and the office opens till, तो वहां पे हो गया कि इतने बजे तक खुला रहता है. दैट मीन्स आइल्स ने क्या किया, आपके साथ एक गेम खेला. आइल्स इज अ माइंड गेम. आइल्स ने आपके साथ एक गेम खेला कि लिखा वर्ड ओपन, लेकिन आपको क्लोजिंग टाइम दे दिया ओपन के साथ, राइट? सो देयरफॉर यू नीड टू सर्कल द कीवर्ड्स, anticipate the correct answer so that you score a band 9. Next step, listen to the tape very carefully. Get the answer, and once you get the answer, अब ये आंसर लिखना कहाँ है आपने? Please write it in the listening booklet. और आंसर लिखना कैसे है? Write it in short forms. Write it in running letters. Okay? For example, आपका आंसर है Wednesday. So please write only WED. If your answer is November, write NOV. अब इसका बेनिफिट क्या होगा? आपको आंसर नंबर 2 मिल गया वेडनेसडे, आंसर नंबर 3 भी तो चाहिए ना. तो अगर आप पूरा वेडनेसडे वहां पे लिखने लग जाओगे, व्हाट विल हैपन? यू विल गेट लेस टाइम टू गेट द नेक्स्ट आंसर. इसीलिए जब आप शॉर्ट फॉर्म्स में लिखोगे, रनिंग लेटर्स में लिखोगे, तो आपके पास ज्यादा टाइम होगा टू गेट द नेक्स्ट आंसर. डन बडीज? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. सी, अनफॉर्चुनेटली, भगवान ना करे वैसे तो कभी किसी के साथ हो, बट इन केस अगर हो जाए, यू नो, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपका एक आंसर मिस हो गया. फॉर एग्जांपल, आपने आंसर नंबर 1 कर दिया, आंसर नंबर 2 कर दिया. अनफॉर्चुनेटली आप फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं 1 to 5, और नंबर 3 जो है वो मिस हो गया. अब अगर आप 3 को पकड़ के रखेंगे तो आपका 4, 5 भी निकल गया उस सेट ऑफ क्वेश्चंस में से. लेकिन अगर आप 3 को, जो भी आपने सुना है, उसके अकॉर्डिंगली एक गेस वर्क करके मूव ऑन कर जाएंगे, तो 3 करेक्ट हो या ना हो, एटलीस्ट आपका 4 और 5 जो है वो बच जाएगा, एंड यू विल गेट इट करेक्ट, राइट? अब सुनिए,
मसला जो है वो तो बैंड 9 का है, तो 39 पे भी 9 हो जाना, 40 पे भी 9 हो जाना है, राइट। 3 अगर बाई चांस करेक्ट हो गया, सी समटाइम्स व्हेन इट्स योर डे buddies, right? Okay, so when you shoot in the dark you kill the black cat, right? Okay, clear? So ये होता है, please do it when it's your day, it's your day, right? And moreover there is no negative marking as well. तो अगर आपका आंसर जो आपने गेस किया था अगर बाई चांस रॉन्ग भी हो जाता है, so what, है ना। अगर आप ब्लैंक छोड़ के आएंगे तो भी तो आपका 1 मार्क कट ही जाना है। So it's better कि आप उसको गेस कर दें। If you get it correct, you know, you do wonders, right? So when the tape stops, उसके बाद क्या होगा, आपने सारे 40 आंसर्स जो है अपनी बुकलेट पे लिख लिए। नाउ द टेप हैज स्टॉप्ड, आपके इंस्ट्रक्शंस आ गए, दैट इज द एंड ऑफ सेक्शन 4। अब एक चीज मैं यहां पे और बताऊंगा, जब आंसर नंबर 40 वो दे देते हैं, आप प्लीज अपने हेडफोन्स मत उतारिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब तक वो ये नहीं कहते कि दैट इज द एंड ऑफ सेक्शन 4, तब तक प्लीज इंस्ट्रक्शंस जो है वो सारे चलते रहेंगे। एंड देन यू विल गेट 10 minutes टू ट्रांसफर योर आंसर्स फ्रॉम द बुकलेट टू द आंसर शीट। अब आपने जब आंसर शीट पे आंसर्स लिखने हैं तो आपने क्या करना है, प्लीज राइट ऑल द आंसर्स इन कैपिटल लेटर्स एंड अ कंप्लीट वर्ड। मैं ये दोबारा रिपीट कर दूं, कहीं कंफ्यूजन में मत रह जाइएगा। यू विल राइट शॉर्ट फॉर्म्स एंड रनिंग लेटर्स इन द बुकलेट, एंड व्हेन यू राइट आंसर्स ऑन द आंसर शीट, at that time you are going to write a complete word and in the capital letters. Before you submit your answer sheet, please make sure that you cross check all the answers. Spelling का बहुत ध्यान रखिएगा, because अगर spellings wrong हो गए तो आपके marks कट जाएंगे। But the good news is IELTS listening में स्पेलिंग जो है वो ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों ही एक्सेप्टेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप का आंसर है फेवरेट तो FAVOURITE, ये भी करेक्ट है। आप बिना यू के लिख देंगे FAVORITE, तो वो भी करेक्ट हो जाएगा। इज दैट फाइन? सो बेसिकली आपको सारा प्रूफ रीडिंग करके वंस एवरीथिंग इज डन, देन यू सबमिट योर आंसर शीट। फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड इन। जैसे मैंने पहले बताया था कि आई एम गोइंग टू शूट वीडियोस, मैं आपको सारे टिप्स दूंगा, हाउ टू सॉल्व द मैप्स, जो कई स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है, हाउ टू सॉल्व द MCQs, द समरी, एवरीथिंग, ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू डिस्कस इन माय अपकमिंग वीडियोस। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें, हिट द बेल आइकन सो दैट यू रिसीव ऑल द नोटिफिकेशंस। कल को नहीं कहना कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया था, आपको नोटिफिकेशंस नहीं आए, आपका बैंड 9 नहीं आया, देन डोंट ब्लेम मी, राइट? और हमेशा जो मैं एंड में कहता हूं, प्लीज डू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।